شدید سردی کی لہر میں مغربی ہواؤں کی نئی انٹری، کلاہت، کوئٹہ، مستونگ، پشین، چمن، قلعہ عبداللہ، زیارت اور جوب میں برف باری، گوادر، جیونی، بسنی اور ماڑہ، پنجگور، خوزدار، چاغی اور خاران میں بارش سے معمولات زندگی متاثر، کوئٹہ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی، بلوچستان کو خیبر پختونخوا سے ملانے والی شاہراہ پر برف جمنے سے ٹریفک کی روانی متاثر، کوئٹہ چمن شاہراہ پر کوشک ٹاپ، کراچی کوئٹہ شاہراہ لک پاس کے قریب گاڑیوں کی روانی سست روی کا شکار۔ بلوچستان میں شدید برفباری کے دوران بھی پاک فوج کے جوان ریلوے ٹریک کی نگرانی پر مبعوث، جعفر ایکسپریس، بولان ایکسپریس اور ریلوے لائنز کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، جوان پرعزم۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، ملکہ کوہسار مری میں برف باری کے بعد پارہ -4 سے بھی نیچے گر گیا، انتظامیہ کا سیاحوں کو رات کے وقت مری کا سفر نہ کرنے کا مشورہ، کشمیر ہائی وے کو سیاحوں کے لیے پھر بند کر دیا گیا، سندھ کے پرفضا مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر ہلکی برف باری کے بعد سردی بڑھ گئی، درجہ حرارت -4 تک گر گیا۔ کراچی میں سرد ہواؤں کے ڈیرے، کم از کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، سردی کی شدت رواں ہفتے برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ ضلع اورکزئی میں شدید برف باری سے بند راستے پاک فوج نے ہنگامی بنیادوں پر کھول دیے، پاک فوج نے دور افتادہ علاقوں میں شدید برف باری اور ناسازگار حالات میں آپریشن مکمل کیا، ضلع کرم میں بھی پاک فوج نے بھاری مشینری سے 8 کلومیٹر روڈ کو بحال کر دیا، مسافروں اور گاڑیوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ بنگلہ دیش کی حمایت میں ورلڈ کپ کھیلنے نہ کھیلنے کا فیصلہ مؤخر، بھارتی میزبانی میں شیڈیولڈ ورلڈ کپ کا مکمل بائیکاٹ یا صرف بھارت کے خلاف میچ سے دستبرداری کے آپشنز پر غور، کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا جائے گا یا ورلڈ کپ کھیل کر فتوحات بنگلہ دیش کی نام کر دی جائیں گی، چیئرمین PCB کی وزیراعظم سے ملاقات میں کئی آپشنز پر مشاورت مکمل، شہباز شریف نے تمام آپشنز کھلے رکھنے کی ہدایت کر دی، حتمی فیصلہ کا اعلان جمعے یا پیر کو ہوگا۔ پاکستان کی جانب سے بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کا زیادہ امکان، پاک بھارت ٹاکرا نہ ہوا تو ICC کو 14 ارب روپے کا جھٹکا پڑے گا، براڈ کاسٹرز نے 2024 سے 27 تک کے نشریاتی حقوق ہر ایونٹ میں پاک بھارت میچ کی شرط پر ہی خریدے، ماہرین نے روایتی حریف آمنے سامنے نہ آنے کی صورت میں ایونٹ کی ویورشپ اور اشتہاری آمدنی میں نمایاں کمی کی پیش گوئی کر دی۔ بنگلہ دیش کا ساتھ نبھانے پر پاکستان کو بھاری قیمت چکانا ہوگی، ICC سے ملنے والے سالانہ تقریباً 9 ارب روپے سے محروم ہونے کا خدشہ، جے شاہ کے انٹرنیشنل کونسل رکن ممالک کو پاکستان کے 7 سیریز اور PSL میں شرکت سے روکنے کے لیے دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی، ماہرین کا انتباہ۔ تہتر لاشیں نکالنے کے بعد گل پلازا میں ریسکیو آپریشن مکمل، تباہ عمارتوں کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، ماہرین کے معائنے کے بعد بلڈنگ کو مسمار کرنے کا فیصلہ ہوگا، سانحے کی تحقیقات کے لیے SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں 5 رکنی ٹیم بن گئی، تفتیش اور ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دے دیا گیا، واقعے کا مقدمہ ہفتے کو نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا تھا۔ سانحے کا شکار گل پلازا میں آگ بیسمنٹ سے لگی، بیسمنٹ میں آنے جانے والے راستے بند اور تالے لگے ہونے کا انکشاف، کلیئرنس آپریشن کی ویڈیو سامنے آ گئی، سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز نے بدقسمت عمارت کا معائنہ مکمل کیا، ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو مطلع کر دیا گیا۔ تعمیری تنقید کریں، جواب دیں گے، سانحہ گل پلازا پر آگ نہ بھڑکائی جائے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مخالفین کو مشورہ، متاثرہ دکانداروں کو گھر چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کر دیا، 2 ماہ میں عارضی دکانیں بھی دینے کا وعدہ، وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کاز وے پر پل کا افتتاح کر دیا۔ جس کو خود شامل تفتیش ہونا چاہیے تھا اس کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا کے انکوائری کی جا رہی ہے۔ آج 10 دن گزر گئے ہیں، کراچی کی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا محرکات تھے، کیا وجوہات بنی۔ اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا اس شہر میں، اتنا بڑا قومی سانحہ ہو گیا ہے، آج کی تاریخ تک اس اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی گئی ہے۔
सानेह गुल प्लाजा पर मट्टी पाव फॉर्मूला नहीं चलेगा। एमकेएम का सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम पर इसरार। 10 दिन गुजर जाने के बावजूद सानेह की इंक्वायरी शुरू नहीं की गई। सिंध हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम की नाकामी अवाम के सामने आ चुकी। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिंध असेंबली में बरस पड़े। ऐवान में शदीद एहतजाज। कराची में आग से मुतासरा गुल प्लाजा के करीब एक और इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने में मसरूफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमती पॉलिसी से बैरूनी अदायगियों के बावजूद सर मुबादला ज़खायर में बेहतरी। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ज़खायर दिसंबर के आखिर तक 20 करोड़ डॉलर्स तक ले जाने का इम्कान। पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की बरामदात से ज़र मुबादला हासिल करने की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद जेम स्टोन सेंटर अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तमाम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों को भी मिलकर काम करने का मशवरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अमारात के वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन अवाद ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी उनके हमराह। पाकिस्तान और म्यांमार में ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। ज़राअत, तिजारत और सयाहत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के ताल्लुकात एहतराम पर मबनी हैं। म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। इसहाक डार की म्यांमार के हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं, धान सभी की गुफ्तगू। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में और कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम सियाह। महफूज आबादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज हुकूमत ने वादी में सिक्योरिटी के नाम पर सख्त लॉकडाउन का नफाज कर दिया। कश्मीरियों को आलमी तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत देने तक भारत को यौम जमहूरिया मनाने का हक हासिल नहीं। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों के हक में रैलियाँ। भारत के नाम निहाद यौम जमहूरी पर भी मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी। सांबा में कश्मीरी को अस्करियत पसंद करार देकर शहीद कर दिया। बन्नू में डोमेल में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा बरामद। पशीन में सीटीडी और पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग के तबादले में मतलूब मुलजिम 5 साथियों समेत हलाक। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। मुसाफिर महफूज रहे। JUI का आम इंतखाबात के खिलाफ 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। सूबाई दारुल हुकूमतों में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान रावलपिंडी में मरकजी एहतजाजी जलसे से खिताब करेंगे। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में 6 फरवरी तक तोसी। शहर भर में जलसे, जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी। असलहे की नुमाइश और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। लाहौर में शेर के हमले में जख्मी बच्चे का बाजू कट गया। शेर के मालिक ने वाकया छुपाने के लिए अस्पताल अमले से झूठ बोला। अस्पताल अमले ने बच्चे का बाजू काट दिया। पुलिस से तफ्तीश के बाद मुलजिमान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफसोसनाक वाक़ये का नोटिस। बच्चे को जदीद बायोनिक बाजू लगाने की हिदायत कर दी। सूबे भर में पालतू शेर रखने की इजाज़त ख़त्म करने की हिदायत भी कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 बिल्स की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी बिल, घरेलू तशद्दुद और तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर बिल्स कानून का हिस्सा बन गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे के लाज़मी वफाकी फंड्स भी अदा न करने का शिकवा। वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। काबिल तक़सीम पोल से 658 अरब के बजाय 604 अरब रुपए मिले।
सुहेल आफरीदी के खत का मतन। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के घर पर आमद। वालिद सैयद गुलाम मुर्तज़ा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है। मईशत की कश्ती भी मंझधार से निकल आई। हमजा शहबाज की बातचीत। बलूचिस्तान के जिला दानबंदीन और अतराफ में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। गहराई 67 किलोमीटर और मरकज 47 किलोमीटर दूर जुनूब मशरिक में था। कोट अद्दू में शॉर्ट सर्किट के बाद शुगर मिल में आग लग गई। 2 अफराद झुलसकर जान बहक, 1 शख्स जख्मी। टैक्सिला में गैस लीकेज के बायस घर शोलों की लपेट में आ गया। 1 शख्स झुलसकर जान बहक हुआ, जबकि लाहौर की शाह आलम मार्केट में बैंक में आग लग गई। रेस्क्यू के अमले ने जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया। कराची के इलाके खोखरापार के स्कूल में आग लगने से 2 बच्चे झुलस गए। लांडी शेरपाव कॉलोनी में फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। न्यू कराची बशीर चौक 6 नंबर कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर कायम तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 35 से 40 गैर कानूनी फैक्ट्रीज में स्मार जमीन मुकम्मल तौर पर वागुजार करा ली गई। मेयर कराची ने शहर में गैर कानूनी दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। महकमा बागात को दरख्त काटने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मेयर कराची ने शहर में गैर कानूनी दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। महकमा बागात को दरख्त काटने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची के इलाके गार्डन में भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रावलपिंडी में खातून ने 10 दिन की बच्ची को कुएं में फेंक दिया और पुलिस ने इस हवाले से कानूनी चाराजोई भी की। कोयटा में ग्रैंड अलायंस की एहतजाज की कॉल। पुलिस ने 6 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से किसी सूरत तवज्जो हटाने की इजाज़त नहीं देगी। सरफराज भुगटी का इंतबाह। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,91,000 पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इज़ाफ़ा। आलमी मंडी में सोना पहली बार $5,100 फी औंस की हद भी अबूर कर गया। मुल्क में सोने के नरखों में 10,900 रुपये फी तोले का इजाफा। कीमत 5,32,062 रुपये हो गई। गजा से आखिरी यरगमाली की लाश भी मिल गई। 20 जिंदा और तमाम हलाक यरगमालियों की वापसी हैरत अंगेज कामयाबी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। हमास ने तमाम यरगमाली और लाशें वादे के मुताबिक वापस की। इसराइल को भी मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। तर्जुमान का मुतालबा। ईरान के गिर्द अमरीका का घेरा तंग। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया। बहरी बेड़ा सान डियागो से नवंबर के आखिर में रवाना हुआ था। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर किसी हमले की सूरत में अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने का ऐलान। अमाराती वजारत खारजा का बहरान के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत पर जोर। अमरीका की कई रियासतों में बर्फानी तूफान ने 12 जानें ले ली। 19,000 से जायद परवाजें मनसूख। 8 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम हो गए। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 25 करोड़ से जायद अफराद के लिए शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। अमरीका में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों शहरियों की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरे कई रियासतों में फैल गए। मिनेसोटा के बाद न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को और दीगर शहरों में हजारों लोग सख्त सर्दी में सड़कों पर आ गए। आइस एहलकारों की गाड़ियों पर बर्फ के गोले भी फेंके। सदर ट्रंप आइस हुकाम की हिमायत में एक बार फिर सामने आ गए। गार्ड्स की फायरिंग से 2 शहरियों की हलाकत। डेमोक्रेट्स की पैदा करदा अफरा तफरी का नतीजा करार। फ्रांस की जानिब से जब्त रूसी ऑयल टैंकर का कप्तान और अमला भारतीय शहरी निकले। जब्त शुदा टैंकर रूस की पाबंदियां तोड़ने वाली नाम नेहाद शैडो फ्लीट का हिस्सा था। यूरोपीय ममालिक ने रूस से गैस खरीदने पर पाबंदी की हतमी मंजूरी दे दी। 1 जनवरी 2027 से रूसी गैस की दरामद रोक दी जाएगी।
یورپی یونین کے اگلے اجلاس میں ہنگری کی جانب سے فیصلے کی مخالفت، معاملہ یورپی عدالت انصاف میں جانے کا اعلان۔ میکسیکو کے فٹ بال گراؤنڈ میں فائرنگ سے 11 افراد ہلاک، 12 زخمی، مسلح افراد نے میچ کے دوران گراؤنڈ میں دھاوا بولا، فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار۔ میکسیکو کے فٹ بال گراؤنڈ انگلش پریمیئر لیگ کے دلچسپ مقابلے جاری، مانچسٹر یونائیٹڈ نے اہم میچ میں آرسنل کو 3-2 سے شکست دے دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں قومی ٹی20 اسکواڈ کے کیمپ کا دوسرا روز، کھلاڑیوں نے وارم اپ سیشن میں حصہ لیا، سینیریو بیسڈ میچز میں شرکت۔ اور امریکی اسپیشل فورس کے سابق اہلکار بھی جرائم کے خلاف سرگرم ہو گئے، ٹی وی سیریز مارشلز کی جھلکیاں ریلیز کر دی گئیں۔